Good evening, everyone. Please mark your attendance. Till that, I'll present my screen. Yeah, please let me know, is the screen visible to everyone? Yes, great. Thank you. So, this is our session number 40. In previous uh, week, we could not continue our lecture due to some problems at my end. Okay, so we'll continue the same session, session number 40 today. Let's continue. These are our today's topics. Okay, we'll take one vocabulary practice, then some new thing, that is emotion words. Those are you know those words, but we'll learn it again. Okay, and a small conversation, that is how to order food on phone. You many people from you must be ordering food. So what conversation does takes place, that we will see today. Okay, so this is our today's first topic, that is vocabulary practice. Okay, so I'll set some pointer options. Okay, see, it's raining everywhere now. So here I have taken few words which are related to rain. Okay, so your first word is pond. पौंड मराठीत अपन डबके म्हणतो, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है बारिश का, ओके, उसको पौंड कहते हैं. ठीक है, तो can you make some sentences using this word pond? You can write in the chat box, or you can raise the hand, जैसे अभी नमिता मैडम ने हैंड रेज किया है. So नमिता मैडम, please switch on your mic. Pond is full of water. Okay, good. Pond is full of water. Very good. Anybody else? कोई और बोलना चाहेगा? You can raise the hand. I will call up your name. I will check the messages. Yes, Nalawade madam, please. There are two frogs in the pond. Very good. There are two frogs in the pond. Very nice. Anybody else? Yes, Namita madam, you can tell the another sentence. Pond's water is steady water. Okay, pond's water is steady water. Good. म्हणजे त्या डबक्यातलं पाणी जे आहे ते स्थिर आहे. Very good. Anybody else? ठीक है, चलो. The next word is rain. Do you see this? Rain. Rain से related sentences बनाइए. Okay, Namita madam, please tell your sentence. We get rain from water cycle. We get rain from water cycle. Okay. Sorry, Anybody madam. else? Sorry. असं येईल ना sentence. We can get rain from because of from नाही because of Because water. of water cycle. Yes. Sorry. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. आपण सगळे शिकतोय, मिस्टेक्स करूनच आपण पुढे जाणार आहात, आणि तुम्हाला स्वतःला ती मिस्टेक रिअलाइज होतंय. दॅट इज रिअली नाईस. ओके, या.
अजून कोणी बोलणार आहे? यू कॅन रेज द हँड. येस, वर्षा मॅडम प्लीज. I bought new umbrella for rainy season. Very good. I bought new umbrella for rainy season. ओके, अजून कोण आहे? येस, मीनाक्षी मॅडम. बोला. तुमचा आवाज नाही येते. मीनाक्षी मॅडम आवाज नाही येते. बाकीच्यांना आवाज येतोय का यांचा जरा लिहा चॅट बॉक्स मध्ये, बिकॉज आय एम नॉट एबल टू हिअर हर. कुड यू हिअर मीनाक्षी मॅडम? प्लीज राईट इन द चॅट बॉक्स. नो. येस, मीनाक्षी मॅडम तुमचा आवाज येत नाही. ओके, या ठीक आहे. विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, फ्रॉग. जसं मगाशी तुम्ही एक सेंटेन्स सांगितलं, देर आर 2 फ्रॉग्स इन द पॉन्ड. त्यामुळे फ्रॉग आणि पॉन्ड दोन्ही एकत्र आलेलं आहे. बट यू कॅन स्टील टेल मी सम न्यू सेंटेन्सेस. येस नमिता मॅडम बोला. Frog give birth their babies in daffodil. परत सांगा. Frog gives birth their little one in daffodil. इन व्हॉट? शेवटचा वर्ड कळत नाहीये तुमचा, तो जरा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. तुम्ही जो सेंटेन्सचा शेवटचा वर्ड बोललात तो चॅट बॉक्स मध्ये लिहा, म्हणजे मग आम्हाला क्लिअर होईल. टॅपोल, टॅपोल्स नाही, तुम्हाला टॅडपोल म्हणायचंय का? मॅडम ते लिटिल आपण मराठीत, थांबा मराठीत सांगते की बेडूक त्यांच्या पिल्लांना जन्म ज्याच्यात देतात ना त्याला काय बोलतात? ज्याच्यात देतात ते तर पाण्यामध्ये होतं सगळं. नाही, त्यांच्या छोट्या पिल्लांना टॅडपोल म्हणतात. हा मग टॅडपोल. मॅडम असं टॅडपोल, फ्रॉग्स बेबी कॉल टॅडपोल. हा हा हा, असं बोलू शकता तुम्ही. जसं तुम्ही मागाशी लिटिल वन शब्द वापरला. द नाही लिटिल वन्स ऍक्च्युली ऑफ मला फ्रॉग्स वाटलं आर की कॉल्ड टॅडपोल असं. ऍक्च्युली मला वाटलं की ती जी पिशवी असते ना, म्हणजे ज्याच्यात ते टॅडपोल असतात त्याला टॅडपोल्स बोलतात असं. नाही सॉरी. नाही 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 नाही, ओके त्यांच्या ओके ओके. बेबीजला आपण टॅडपोल म्हणतो. ओके हा ओके, म्हणजे वर्षा असं मॅडम येईल प्लीज ना, स्विच ऑन. हा बोला बोला. की असं येईल ना, फ्रॉग्स लिटिल वन कॉल टॅडपोल, असं सेंटेन्स येईल येस ना म्हणजे. येस, हो हो हो, असं सेंटेन्स येणार तुमचं. ओके, येस वर्षा मॅडम प्लीज स्विच ऑन युअर माईक. Yesterday I saw frog in my house. Very good. Yesterday I saw frog in my house. You can see frogs everywhere in the rainy season. असं पण तुम्ही बोलू शकता, right? Then the next word is this one. Clouds. Clouds म्हणजे ढग. ओके, बादल बोलते हिंदी में हम उसको. ये जो क्लाउड्स है उसके लिए सेंटेंसेस बताइए. यस नमिता मैडम. ब्लॅक कलर क्लाउड गिव्ह अस रेन. हा, आता इथे आपल्याला कलर हा वर्ड नाही वापरला तरी चालेल, बिकॉज ब्लॅक इंडिकेट्स द कलर ओनली. ओके, सो यू कॅन से ब्लॅक क्लाउड्स गिव्स अस रेन. ओके, ओके. या देन वर्षा मॅडम बोला. बिकॉज आता तुम्ही दोनच ऍक्टिव्ह पार्टनर आहात इथे. मीनाक्षी मॅडमचा आवाज येत नाहीये आणि बाकी लोक जॉईनच झाले नाहीयेत आज. There are many clouds in the sky. Very good. There are many clouds in the sky. Very good. Then the next word is umbrella.
Yes, Namita madam. Umbrella is used for rainy season. Yes, umbrella is used for rainy season. But umbrella we use in summer also. Okay. Then uh, Varsha madam तुम्ही बोला. I have pink umbrella. Very good. I have pink umbrella. ठीक है. Very nice. Then this is rainbow. Rainbow म्हणजे इंद्रधनुष्य. ओके. हिंदी में भी उसको इंद्रधनुष बोला जाता है. आपण धनुष्य बोलतो मराठीमध्ये. ओके. सो आता मला याच्यावरनं जरा सेंटेन्सेस सांगा नमिता मॅडम. Rainbow has 7 colors in it. व्हेरी गुड. रेनबो हॅज 7 कलर्स. फक्त इतकंच बोललं तरीही सेंटेन्स कम्प्लीट आहे. ओके. रेनबो हॅज 7 कलर्स. इन इट नाही बोललं तरीही चालणार आहे. वर्षा मॅडम. I saw rainbow. आय सॉ रेनबो. आणि आपल्याला रेनबो कधी दिसतो असं जर आपल्याला सांगायचं असेल तर वी कॅन सी रेनबो when there is a combination of sun and rain, or you can say light and rain, sunlight and rain. Okay. Then this is thunderstorm. Thunderstorm म्हणजे काय? जे वादळ येतं. ओके. दॅट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म वरनं कोण वाक्य बनवणार आहे? नमिता मॅडम बोला. Tauket thunderstorm destroyed all the things. येस येस. आता जे रिसेंटली झालं टॉकटे, थंडरस्टॉर्म डिस्ट्रॉइड ऑल द थिंग्स. ओके. इट विल डू. व्हेरी गुड. वर्षा मॅडम. Due to thunderstorm, our electricity gone. ओके. ड्यू टू थंडरस्टॉर्म आवर इलेक्ट्रिसिटी गॉन. आता हे खूप गॉन पेक्षा आपण त्याला एकदमच व्यवस्थित जर वाक्य बनवायचं असेल cut off. कट ऑफ वापरू शकता. आउटेज हा शब्द आहे तो वापरू शकता. वी फेस्ड इलेक्ट्रिसिटी आउटेज ड्यू टू थंडरस्टॉर्म असंही आपण बोलू शकतो. ओके. देन लास्ट वर्ड आहे आपला रेनकोट. नमिता मॅडम. Raincoat save us from rain. Okay, very good. Raincoat saves us from rain. Good. Varsha madam. We use raincoat in rainy season. We use raincoat in rainy season. Okay. मीनाक्षी मॅडम बघूया तुमचा माईक चालू करा. आम्हाला आवाज येतोय का बघूया. We are seeing many varieties of rain. हा तुमचा आवाज येतोय पण क्लिअर नाहीये. परत सांगा एकदा वाक्य. We are seeing many varieties rain. Okay. We see many varieties of raincoat, right? येस. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे रेनकोट बघायला मिळतात. ओके. व्हेरी गुड. सो हिअर आर व्हेरी फ्यू वर्ड्स. तुमचा होमवर्क असणार आहे की यू हॅव टू राईट द वर्ड्स रिलेटेड टू रेनी सीझन. यू हॅव टू राईट द वर्ड्स अँड देन यू हॅव टू यूज देम इन द सेंटेन्सेस. आता इथे आपण थोडेसेच वर्ड्स घेतलेले आहेत, बट तुम्ही बरेचसे वर्ड्स शोधून काढा, त्याचे मिनिंग शोधा अँड देन त्यांचे वाक्य लिहायची आहेत. ओके. देन विल मूव्ह टू द नेक्स्ट वन. जो आपला सेकंड टॉपिक होता, व्हॉट वॉज इट? इमोशन वर्ड्स. ओके. सो नाउ व्हॉट आर इमोशन्स? इमोशन्स मीन्स जे फिलिंग्स आहेत, आपण जे फिलिंग्स जे आपण फील करतो. आपण कधी रागवतो, कधी आनंदी असतो. ठीक है. कभी हम गुस्सा करते, कभी खुश होते, कभी दुखी होते हैं, कभी डर जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस जो है हमारे में, उनको यहाँ पे मैंने पिक्चर फॉर्म में भी दिखाया है और उसके मराठी और हिंदी मीनिंग्स भी दिए हैं. तो जस्ट उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे. देर आर मेनी ऑफ देम, ऑलमोस्ट 28 numbers. Okay.
तो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग एंड देन विल गो टू द कन्वर्सेशन पार्ट. ओके, सो देखिए यहाँ पे जनरली एक स्लाइड पे मैंने 6 इमोशन वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो दिस इज योर फर्स्ट वन. वर्ड के साथ पिक्चर है तो इट इज बिन इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, आपको पिक्चर के साथ अगर पिक्चर रहेगा तो वर्ड के साथ उसको समझना ज्यादा आसान पड़ेगा. जैसे पहला वर्ड है एंशियस. ओके, याचा उच्चार अँशियस असा होतो. मराठी वर्ड आहे चिंताग्रस्त, म्हणजे खूप काळजी वाटणे वगैरे म्हणतो ना आपण, दैट इज एंशियस. और हिंदी में उसको बोला जाता है चिंतित, मतलब चिंता करना, बहुत ज्यादा चिंता होना, उसको बोला जाता है. वो जो मूड है हमारा या वो जो इमोशन है उसको बोला जाता है एंशियस. सेकेंड है मिजरेबल. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है मिजरेबल, मराठीमध्ये म्हणतो आपण दयनीय. आपण म्हणतो ना अरे रे खूपच वाईट अवस्था झाली आहे, दयनीय अवस्था झाली आहे, तो दैट इज कॉल्ड मिजरेबल. ओके, और हिंदी में उसको दुखी, या आप जैसे बोलते हो बेचारा, बहुत ही बुरी हालत में है वगैरह, तो वो है मिजरेबल. ओके, थर्ड है नर्वस. अभी नर्वस में और एंशियस में यहाँ पे दोन्ही ठिकाणी मराठीमध्ये मी चिंताग्रस्तच शब्द लिहिलेला आहे. तर अँशियस मध्ये चिंता खूप जास्त आहे आणि नर्वस मध्ये कसं होतं, एखादं काहीतरी काम तुम्ही करायला गेलात पण थोडी भीती वाटते ना आपल्याला सुरुवातीला, तर ती चिंता जी आहे ती आहे नर्वस. ओके, तर हे थोडं कमी आणि हे याचं एक्सटेंट जे आहे अँशियसचं थोडं जास्त आहे. हिंदी में उसको बेचैन बोलते. मराठीत पण आपण बोलतो की नाही जरा मला बेचैन वाटतंय हे काम करण्यापूर्वी वगैरे, सो दॅट इज नर्वस. नेक्स्ट आहे बोर्ड. तुम्हाला माहितीच आहे बोर म्हणजे कंटाळलेला, कंटाळणे. और हिंदी में उब जाना या उबना बोलते हैं, मतलब कहीं भी मन नहीं लग रहा है. ओके, तो हम वो है बोर. आपण मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये हा शब्द सरळ सहज वापरतो. तुम्ही बोलता ना अरे बोर झालाय मला खूप, या मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो ये इंग्लिश वर्ड है जो हम लोग हिंदी मराठी में बहुत ही इजीली यूज करते. देन नेक्स्ट आपका वर्ड है हॅप्पी. हॅप्पी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आनंदी. बघा इथे हा फेस दाखवलेला आहे, हॅप्पी फेस. ओके, आनंदी. हिंदी में बोलते हैं खुश, खुश होना. नेक्स्ट आहे सरप्राइज्ड. सरप्राइज म्हणजे आता इथे बघा चेहरा दाखवलेला आहे, इस चेहरे पे क्या है, आश्चर्य है. ओके, तो आश्चर्यचकित मराठी वर्ड आहे, हिंदी में भी आश्चर्य बोलते हैं या प्योर हिंदी में स्तंभित होना बोलते हैं. ओके, मतलब आश्चर्य होना किसी भी चीज का. ओके, आश्चर्यचकित, दैट इज सरप्राइज. नेक्स्ट वर्ड आहे आपला फिअर. फिअर म्हणजे भीती. नंबर 7. इथे बघा चेहऱ्यावर तुम्हाला भीती दिसते. ओके, हिंदी में बोलते हैं उसको घबराहट, दैट इज फियर. नेक्स्ट वर्ड है सैड. सैड म्हणजे दुखी. हिंदी में भी दुखी बोलते हैं. देखिए चेहरे पे दुख दिख रहा है, यहाँ पे आंखों से ज्यादातर पता चल जाता है आपको. नेक्स्ट वर्ड 9th वर्ड है कंफ्यूज्ड. कंफ्यूज म्हणजे काय, गोंधळलेला. ओके, जो उलझन में हो, कुछ समझ में ना आए, वो है कंफ्यूज्ड. ओके, 10th वर्ड है स्केप्टिकल. स्केप्टिकल म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो त्याला संशयी, और हिंदी में बोला जाता है शक्की, मतलब शक करने वाला. ओके, दैट इज स्केप्टिकल. किसी भी चीज के बारे में शक होना, उसको वो जो इमोशन है उसको स्केप्टिकल बोला जाता है. नेक्स्ट है अनश्योर. अनश्योर मतलब अनिश्चित. हिंदी में भी अनिश्चित बोला जाता है आणि मराठीत पण आपण अनिश्चित म्हणतो. म्हणजेच काय, ज्याची काहीच आपल्याला खात्री नाहीये तो आहे अनश्युअर. ओके, लास्ट वर्ड आहे या स्लाइड मधला एनकरेज्ड. एनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित. हिंदी में भी प्रोत्साहित बोला जाता है, मराठीत पण आपण प्रोत्साहित म्हणतो. म्हणजे आपण म्हणतो ना की एखादी गोष्ट करावीशी वाटते किंवा कोणीतरी तुम्हाला ती गोष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो,
ते आहे एनकरेज्ड. नेक्स्ट वर्ड आहे आपला हेजिटंट. हेजिटंट म्हणजे काय? संकोच. दोन्ही ठिकाणी बघा हिंदी में भी संकोच ही लिखा है, मतलब कोई भी चीज करने से आप पीछे हट रहे हो. ठीक है. हेजिटेंट, मुझे ये नहीं करना है, ऐसा जो फीलिंग आता है उसको बोला जाता है हेजिटंट. संकोच बोलतात मराठीत आणि हिंदीत पण संकोच. ये है परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड मीन्स जैसे कंफ्यूज देखा था हम लोगों ने, वैसे यहाँ पे परप्लेक्स्ड है, त्याला म्हणतात गोंधळलेला. हिंदी में बोलते हैं विकल्ड. ओके. नेक्स्ट है स्टंड. यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन स्टंड म्हणजे काय की एखादी गोष्ट बघून जसं आपण आश्चर्यचकित होतो तसंच आपण एखादी गोष्ट बघून एकदम स्तब्ध होतो. ओके, बघतच राहतो. तर दॅट इज कॉल्ड स्टंड. कधी कधी तुम्ही असे शब्द वापरता बघा, यू आर लुकिंग व्हेरी स्टनिंग. म्हणजे काय की एखाद्या गोष्टी त्या व्यक्तीकडे बघत राहावं असं वाटतं वगैरे, तर दॅट इज स्टंड. त्या इमोशनला आपण स्टंड म्हणतो. ओके. स्टंड मराठीत म्हणणार स्तब्ध और हिंदी में बोलेंगे दंग, मतलब दंग रह जाना, किसी भी चीज को देख के आप उसमें खो जाते हो, दंग हो जाते हो. ओके, दैट इज स्टंड. नेक्स्ट है ग्लैड. जैसे हैप्पी देखा था वैसे ही ग्लैड सिमिलर वर्ड है हैप्पी का, आनंदी. ओके, हिंदी में बोलते हैं प्रसन्न. देन है पेसिमिस्टिक. ये देखिए ग्लैड का कैसे खुश है. पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, जिसको किसी भी चीज की आशा नहीं होती है, वो है पेसिमिस्टिक. देखिए मराठी मध्ये पण निराशावादी बोलतो आपण और हिंदी में भी उसको निराशावादी ही बोला जाता है. ओके. देन ये है अपसेट, मतलब नाराज, परेशान है. अपसेट मराठी मध्ये नाराज आणि हिंदी में परेशान. ओके. एक बार फिर से देखिए, हेजिटेंट मतलब संकोच, परप्लेक्स्ड गोंधळलेला मतलब हिंदी में विकल, स्टंट स्तब्ध, दंग बोला जाता है हिंदी में, ग्लैड है आनंदी प्रसन्न, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी और अपसेट मतलब नाराज या परेशान. ओके. ये है डिलाइटेड, कुछ ज्यादा ही खुश है. ओके. डिलाइटेड सेम मीनिंग जो ग्लैड का था, आनंदी प्रसन्न. इंटरेस्टेड मतलब आपको कोई भी चीज करने की इच्छा होना. ओके. तो वो है इंटरेस्टेड, वो चेहरे पे दिख जाता है. जैसे आपसे कोई बात कर रहा है आपकी पसंद की, तो आपके चेहरे पे दिखने लगता है कि हाँ आपको ये सुनने में इंटरेस्ट है. ओके. तो दैट इज, देखिए इसके चेहरे पे जैसे यहाँ पे दिखाया है इंटरेस्टेड, मराठी मध्ये आपण इच्छुक म्हणतो और हिंदी में बोला जाता है स्वारस्य, मतलब खुद से उसमें इंटरेस्ट लेना, स्वारस्य लेना. ओके, रस लेना. देन एंग्री. देखिए यहाँ पे दिखाया है गुस्सा कर रहा है. ओके. तो एंग्री म्हणजे मराठीत राग और हिंदी में गुस्सा. यहाँ पे घ हो गया है ग का, तो उसको गुस्सा नहीं बोलते, गुस्सा बोलते हैं. ग ग. ओके. तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी. तो गुस्सा है वो, तो चेहरे से आपको यहाँ पे पता चल रहा है. नेक्स्ट वर्ड है आपका अफ्रेड. अफ्रेड म्हणजे बघा चेहऱ्यावर दिसते भीती. ओके. वो डर रहा है. तो अफ्रेड मतलब मराठी में है भीती और हिंदी में डर लगना. मराठी मध्ये आपण बोलतो भीती वाटणे, भय वाटणे, और हिंदी में बोला जाता है डर लगना. ओके. और देखिए ये हैप्पी से रिलेटेड कितने वर्ड्स है. अभी अभी हम लोगों ने देखा हैप्पी, फिर ग्लैड देखा, फिर यहाँ पे डिलाइटेड देखा, अभी यहाँ पे जॉयफुल भी है. ठीक है. तो जॉयफुल मतलब भी आनंदी, आनंदपूर्ण. जैसे ये जनरली हम बोलते हैं कि आजचं वातावरण किती आनंदी आहे. ठीक है, आज का वातावरण कितना आनंदपूर्ण है, सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है. तो दैट इज कॉल्ड जॉयफुल. नेक्स्ट वर्ड है टेंस. टेंस मतलब देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत तणाव में है, तो खूप त्रासात आहे. ओके, दैट इज कॉल्ड टेंस, तणावग्रस्त.
किंवा त्रासात असणे त्याला आपण टेन्स्ड म्हणतो. हिंदी में बोलेंगे तनाव में. ओके, जैसे बोलते हैं ना एक कुछ टेंशन है, तो ये टेंशन का इमोशन वर्ड जो है उसको टेंस्ड बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट है शाय. शाय मतलब बघा इथे दिले लाजाळू. ओके, संकोच करना, मतलब कोई भी चीज को आप डायरेक्टली जाके बोलते नहीं हो वगैरह वगैरह, उसको बोला जाता है शाय, लाजणे. ओके, लविंग मतलब मराठी मध्ये प्रेमळ, हिंदी में प्यारा. देखिए उसके चेहरे से ही दिख रहा है. अनॉइड, अनॉइड मतलब नाराज. मराठी मध्ये पण नाराज म्हणतो आपण, हिंदी में भी नाराज बोलते. मतलब आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या कोई आपको परेशान कर रहा है बार बार, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो है अनॉइड. ओके, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक. मराठी मध्ये आपण म्हणतो त्याला उत्सुक. देखिए चेहरे से ही पता चल रहा है कि अपने बच्चों में वगैरह देखा होगा कि कोई नई चीज अगर आप घर में लाते हो तो बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं उसको जानने के लिए कि क्या है ये. तो वो है मराठी मध्ये आपण उत्सुक म्हणतो, हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासु. ओके, कोई भी चीज के बारे में पता करने की जो इच्छा होती है उसको इंग्लिश में आप क्यूरियस बोलोगे. फाइन, तो ये एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं. एंशियस, मिजरेबल. सिर्फ आप फोटोज देखते जाइए, ये जो चेहरे हैं ये सब मैं शेयर करूंगी आपके ग्रुप के ऊपर, तो आपको ये सब ध्यान में रहेगा. ये है नर्वस, ये बोर्ड है, हैप्पी, सरप्राइज्ड, फियर मतलब डर, सैड दुखी है, कंफ्यूज्ड, स्केप्टिकल शक्की, अनश्योर अनिश्चित, एनकरेज्ड प्रोत्साहित, हेजिटेंट कोई चीज करने में संकोच करना, परप्लेक्स्ड गोंधळलेला आहे. ओके, वही कंफ्यूज बोल सकते हो आप. स्टंट स्तब्ध किंवा दंग होणे, ग्लॅड खुश, पेसिमिस्टिक निराशावादी, अपसेट नाराज या परेशान, डिलाइटेड अगेन खुश आनंदी, इंटरेस्टेड इच्छुक, अँग्री गुस्सा आना म्हणजे रागावणे, अफ्रेड डर लगना भीती वाटणे, जॉयफुल अगेन हॅप्पी, टेन्स मतलब तणाव में होना त्रासात असणे, शाय लाजाळू, लविंग प्रेमळ, अनॉइड नाराज, क्यूरियस उत्सुक. तो ये कुछ इमोशंस है. इसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस हमारे में होते हैं या हो सकते हैं. ओके, तो इसमें से जितने मैं एक साथ गैदर कर सकती थी आई गैदर्ड देम, और ये सब कुछ उसमें से 28 जो है वो आज हम लोगों ने देखे हैं. ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. ये सिर्फ इमोशंस है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपको सब समझ में आना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है. ओके, तो इज एवरीबडी ओके विद दिस? क्या आपको ये सब समझ में आया है? क्या आगे मूव कर सकते हैं हम लोग? यस और नो राइट इन द चैट बॉक्स. अभी कन्वर्सेशन लेना है हमें. राइट, ओके, थैंक यू. सी हियर, हियर इट इज अ कन्वर्सेशन ऑर्डरिंग फूड ऑन फोन. ओके, जसं मी मगाशी सांगितलं सुरुवातीला तुम्हाला की आजकाल बऱ्याचशा गोष्टींसाठी आपण बरेच लोक काय करतात बाहेरून वगैरे जेवण मागवतात. कधी काही अर्जन्सी असते, कोणी सपोज जो घरात काम करणारी व्यक्ती आहे जेवण बनवते तीच व्यक्ती समजा आजारी आहे, बरं नाही वाटत, अशी बरीचशी कारणं असतात ज्याच्यासाठी आपण बाहरून जेवण ऑर्डर करते. कभी पार्टी है, घर में मेहमान आने वाले हैं और इतना सारा खाना नहीं बना सकते हैं, कभी वैरायटी चाहिए होती है हमें. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से बाहर से किसी रेस्टोरेंट से, होटल से, कहीं से भी हम लोग फूड ऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन दिया है, यहाँ पे आर इज
for restaurant worker and C is the caller. caller मतलब जिसने फोन किया है वो, और ये कौन होने वाला है जो फोन उठाएगा, क्योंकि हम फोन पर फूड ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आपको एक दूसरे के साथ कन्वर्स करना है, फाइन। तो देखिए, आर इज अ रेस्टोरेंट वर्कर, फिर से बता देती हूँ, और सी कॉलर मतलब जिसको फूड ऑर्डर करना है वो, सी। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन इट। आई विल कॉल द नेम इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, और आपका माइक अगर नहीं ऑन हो सकता है तो आप मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, ओके। सी, आर इज अ रेस्टोरेंट वर्कर, तो फोन बज रहा है, इमेजिन कि उसका फोन बज रहा है रेस्टोरेंट का, और उसने उठाया, किसने, रेस्टोरेंट में जो काम कर रहा है उसने उठाया। तो कैसे बोलेंगे, आनंद रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब वो क्या करेगा, पहले अपने रेस्टोरेंट का नाम बताएगा कि आपने कहाँ पे फोन किया है, और फिर पूछेगा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ओके। आनंद रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो नाउ अभी कॉलर जिसने फोन किया है वो बात करेगा। हेलो, आई वुड लाइक टू मेक एन ऑर्डर, ओके, फॉर पिकअप और डिलीवरी। अभी सी, कॉलर ने क्या बताया, कॉलर ने हेलो बोला और बोला कि मुझे एक ऑर्डर देना है। तो रेस्टोरेंट वर्कर ने क्या बोला, ठीक है, ओके, फॉर पिकअप और डिलीवरी। पिकअप मतलब आप खुद जाके वहां से वो लेके आओगे ऑर्डर, या डिलीवरी मतलब क्या, उनका पर्सन, उनका कोई आदमी आएगा और आपको घर पे वो सामान या जो भी आपने ऑर्डर किया है वो दे देगा, ओके। तो यहाँ पे कॉलर क्या बोलता है, डिलीवरी प्लीज, मतलब घर पे भेज दीजिए, ओके। अभी रेस्टोरेंट वाला बोलता है, कैन आई हैव योर एड्रेस प्लीज। अभी कहाँ पे भेजेगा तो एड्रेस लगेगा, राइट। तो एड्रेस पूछता है, यहाँ पे कॉलर बता देता है 679 शास्त्री स्ट्रीट। उन्होंने एक शॉर्ट में एड्रेस बता दिया। जनरली ये भी देखिए कि हम लोग अपने लोकल या सबब से ही जो भी ऑर्डर करना होता है वो मंगवाते हैं। तो इट इज लाइक कि आपके आजू बाजू में ही कोई रेस्टोरेंट है, वहां से आप मंगवा रहे हो फूड, इसीलिए ऐसे शॉर्ट में एड्रेस बताया गया है, ओके। सिर्फ स्ट्रीट और घर का नंबर दिया गया है। देखिए अभी वो क्या पूछता है रेस्टोरेंट वाला, इज दैट अ हाउस और एन अपार्टमेंट, मतलब ये घर है या कुछ कोई बिल्डिंग वगैरह है। तो कॉलर सेज अ हाउस, ओके, मतलब एक सिंगल हाउस, ऐसे, इट्स नॉट इन अ बिल्डिंग। देन रेस्टोरेंट वाला पूछता है, एंड योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर दे दीजिए। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है कॉलर ने, यस, 4168483932, ओके। अभी रेस्टोरेंट वाला बोलता है, ग्रेट, व्हाट वुड यू लाइक। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए, मतलब उसने पहले क्या पूछा, एड्रेस जहाँ पे उसको भेजना है वो ऑर्डर, और कुछ अगर बीच में प्रॉब्लम आई तो उनको कांटेक्ट करने के लिए फोन नंबर। अभी पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए खाने में। देखिए इधर गया, सॉरी मैं, हाँ यहाँ पे, सॉरी अगली स्लाइड पे चली गई थी मैं। अभी उसने पूछा, ग्रेट, व्हाट वुड यू लाइक, आपको क्या चाहिए। सो कॉलर सेज, डू यू सर्व थालीज, आप थाली सर्व करते हो क्या। थाली, यू नो, मेनी डिशेस आर कंबाइंड इन वन प्लेट, ओके, दैट इज कॉल्ड थाली। तो रेस्टोरेंट वाला बोलता है, ये श्योर, मतलब हाँ हम देते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, कंटिन्यूएशन है। तो अभी कॉलर पूछता है, ओके देन व्हाट डू यू सर्व इन वेज थाली। अभी उसने पूछा कि आप वेज थाली में क्या देते हो, ओके। सो रेस्टोरेंट वाले ने उसका पूरा लिस्ट बता दिया। देखिए, राइस, दाल, 3 रोटीज, मिक्स वेज सब्जी, ड्राई सब्जी, पापड़, पिकल, चटनी, 2 गुलाब जामुन एंड बटर मिल्क, मतलब उसने पूरा थाली का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उसमें क्या क्या सर्व करेंगी। तो नाउ कॉलर सेज, ओके,
आई विल हैव अ वेज थाली देन। ठीक है, तो मैं वेज थाली ही, मतलब उन्होंने, जो कॉलर है उनको ये सब पसंद आया तो उन्होंने बाकी कुछ चीज के बारे में पूछा ही नहीं, और उन्होंने फिक्स कर दिया कि उनको क्या चाहिए, वेज थाली। ओके, मतलब वो ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं। तो अभी रेस्टोरेंट वर्कर से, ओके, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? ठीक है, आपको और कुछ चाहिए? नो थैंक्स, दैट्स एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला कि नो थैंक्स मतलब शुक्रिया और कुछ नहीं चाहिए, यही, बस यही दे दीजिए। देन रेस्टोरेंट वर्कर से ओके, अभी वो बिल बता रहा है, ठीक है, ओके, दैट विल बी ₹250। देन ये से कॉलर से, रियली, व्हाई इज इट सो मच? अभी कॉलर को लगा कि ये पैसे थोड़े ज्यादा है, तो उन्होंने पूछा ये इतना क्यों है? तो रेस्टोरेंट वर्कर से, देयर इज अ स्मॉल ₹30 डिलीवरी फी। उसने क्या बोला कि थाली की प्राइस 250 से कम ही है, लेकिन आपको जो घर पे डेली आने वाला है उसके कुछ चार्जेस है। कितना है? ₹30। ओके, तो कॉलर सेज आई सी, ओके, हाउ कैन आई पे? अभी कॉलर इज कंफर्टेबल, ठीक है, उनको जब पता चला कि ये सब डिलीवरी फीस वगैरह है, तो उन्होंने पूछा ठीक है, कैसे पे करना है मुझे, मतलब पैसे कैसे देने हैं? तो रेस्टोरेंट वर्कर से, यू कैन पे कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आपके घर पे जब वो डिलीवरी पहुंच जाएगा वेज थाली का, फिर आपको कैश पे करना है। कितना कैश पे करना है? 250। अभी और क्वेश्चन है कॉलर के, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर? हम लोग भी पूछते हैं ना, अगर कुछ डिलीवरी आना होता है तो हम लोग पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। तो रेस्टोरेंट वर्कर ने बोला अराउंड 30 मिनट्स। ये जनरली सभी रेस्टोरेंट का एक फिक्स टाइम है कि 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में आपका सामान, आपका जो भी ऑर्डर है वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अराउंड 30 मिनट्स बोला है उसने। फिर कॉलर से ओके थैंक्स, क्योंकि कन्वर्सेशन अभी खत्म हो रहा है, जो भी बोलना था वो सब पूछ के बोल के हो चुका है। तो restaurant worker says, thank you for calling Anand Restaurant. Have a great evening. Okay, and the conversation closes here. Okay, तो वेरी सिंपल थिंग, आप लोग हमेशा ये सब यूज करते हो, सिर्फ अभी इंग्लिश में कैसे करना है ये हम लोगों ने देखा है। अभी आपको एक एक करके, जिनका माइक ऑन हो सकता है वो 2 लोग हैंड राइज कीजिए प्लीज, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, वर्षा मैडम एंड, ठीक है, मीनाक्षी मैडम एंड वर्षा मैडम पहले स्टार्ट करेंगे। चलिए वर्षा मैडम, यू कैन स्टार्ट एंड देन मीनाक्षी मैडम विल रिप्लाई। Okay, madam. या Anand Restaurant. How can I help you? हाँ, Hello. Would like to make order. Okay. For a pick or delivery? For a pickup or delivery? Delivery please. Can can I have your address, please? 679 Shastri Street. Is that a house or an apartment? A house. And your phone number? 416-848-3932. Great. What would what would you like? Will you serve thali? Yes, sure. Okay then. What do you serve in veg thali? Rice, dal, 3 rotis, mixed veg sabzi, dry sabzi, papad, pickle, chutney, gulab jamuns, and buttermilk. Okay. I will have a veg thali then. Okay. Would you like anything else? No thanks. That's everything. Okay. That will be rupees 250.
Really? What is it so much? There is a small miss 30 delivery. I see. Okay. How can I pay? You can pay cash on delivery. How long will it take to deliver? Around 30 minutes. Okay, thanks. Thank you for calling Anand Restaurant. Have a great evening. Very good. Now, both of you, please switch off your mics. Menoka madam, let's check whether your network is stable. आपका माइक ऑन कर दीजिए. Yes, ma'am. Is it audible? Yes, you are Hello. audible. So, Hello. yes, audible. Audible. Yeah. तो आपको Okay, ma'am. एक ही बार बोलना है क्योंकि आपकी आवाज पहुंच रही है अच्छे से. ओके. Okay. हाँ. और आपको स्टार्ट Okay. करना है. या रेस्ट आर के डायलॉग Yes, आपको ma'am. बोलने हैं और सी के डायलॉग बोलेंगी वर्षा मैडम. Mm. ओके. वर्षा मैडम माइक ऑन करा. Okay. Mm. Yes. Anand, Anand Restaurants. How can I help you? Hello. I would like to make an order. Hello. Okay. For pickup or delivery? Delivery, please. Can I have your address, please? 679 Shastri Street. Is that a house or an apartment? Aha. And your phone number? 416-848-3932. Great. What did you like? Do you serve thali? Yes, sure. Okay then. What do you serve in veg thali? Rice, dal, three rotis, mixed veg sabji, dry sabji, papad, pickle, chutney, two gulab jamuns, and buttermilk. Okay. I will have a veg thali then. Okay. Would you like anything else? No thanks. That's everything. Okay. That will be rupees 250. Really? Why is it so much? There is a small rupees 30 delivery fee. I see. Okay. How can I pay? You can pay cash or delivery. How long will it take to delivery? Around 30 minutes. Okay, thanks. Thank you for spelling Anand Restaurants. Have a great evening. ओके ग्रेट वेरी गुड. ओके. नाउ वर्षा मैडम के दोनों डायलॉग्स हो गए मेरे ख्याल से. कॉलर और रेस्टोरेंट वर्कर भी. तो अभी हम लोग मेनका मैडम और मीनाक्षी मैडम में स्विच करेंगे. ओके. तो मेनका मैडम अभी आपने रेस्टोरेंट वर्कर का बोला है. अभी आप कॉलर रहेंगे एंड मीनाक्षी मैडम विल बी Okay. restaurant worker. Okay. Meenakshi madam, please switch on your mic and start the conversation. Anand Restaurant. How can I help you? Hello. I would like to make an order. Okay. For pickup or delivery? Delivery, please. Can I have your address?
679 Sestri Street. Is that a house or an apartment? A house. And your phone number? 416-848-3932. Great. What would you like? Do you serve thalis? Yes, sure. Okay then. What do you serve in veg thali? What do you I serve in veg thali? rice, dal, 3 rotis, mixed veg sabji, dry sabji, papad, pickle, chutney, 2 gulab jamuns, and buttermilk. Voice is not audible, no? Okay, I will have a veg thali then. Okay, would you like anything else? No thanks. That's everything. Okay, that will be rupees 250. Really? Why is it so much? There is a small rupees 30 delivery fee. I see. Okay. How can I pay? You can pay cash on delivery. How long will it take to deliver? Around 30 minutes. Okay. Thanks. Thank you for calling Anand Restaurant. Have a great evening. Very good. So everybody was nice, and now you all can switch off your mics. Yeah, thank you so much. So today, here we have completed our last topic, that was conversation. So we'll go through once again what we have learned today. We have taken vocabulary practice, that is, we have taken some words related to rain. What you have to do as a homework, you have to find uh, other words related to rain, and you have to use them in the sentences. Okay, you can write their Marathi and Hindi meanings also. Then we have seen emotion words. This I will share with you. You have to learn these words and you can use them in the sentences also for more practice. Then we have seen the conversation, that is ordering food on phone, and you all did very well. So you have to do one thing now. You have to try to write स्मॉल कन्वर्सेशंस. आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे कन्वर्सेशंस बनाना थोड़ा शुरू कर दीजिए. कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, आपके ऑफिस की हो, स्कूल की हो, घर की हो, और दो लोगों के बीच में क्या डायलॉग्स हो सकते हैं वो आपको लिखना शुरू करना है. एंड यू कैन शेयर इट विथ मी इफ देयर आर सम कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ मिस्टेक्स रहेगा, एनीथिंग इज देयर. क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Am I audible? Yeah, I don't know how I left the class. वैसे भी क्लास कंप्लीट हो चुका है. आई वॉज जस्ट टेलिंग यू वन थिंग दैट व्हाट यू हैव टू डू. आपको छोटे छोटे कन्वर्सेशंस रेडी करने हैं अभी. आपकी थॉट प्रोसेस आनी चाहिए उसमें. आप डायलॉग्स भरो उसमें. कुछ अगर मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप, अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो आई विल शेयर विथ यू. एंड इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस होता रहेगा. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर टुडे.
Please do practice at home. Okay. Good night and bye everyone. Please take care of yourselves and your family. Bye bye. You all can leave the class now. Thank you so much. Good night. Good night. Yeah, thank you so much. Bye.